Assalamualaikum grade 10. How are you? Faiza Nadeem here with your English lectures. I hope all of you are fine. I hope all of you are healthy. I hope all of you are studying. I hope all of you have designed your study schedule and following it religiously. What are we going to do today? We are again going to finish off Review 2. Yes, I know there have been a lot of lectures based on Review 2, but बेटा उतनी सारी उसमें exercises भी तो थी, तो हमने कोई लूप होल तो नहीं छोड़ना ना. We have to complete all the exercises. So, let's start today's lecture with the first question that was left from Review 2. जी, Review 2 का first question आपसे कह रहा है कि आपने ये जो गिवन लाइन्स हैं इनको पैराफ्रेज करना है. पैराफ्रेज क्या होता है? पैराफ्रेज होती है एक्सप्लेनेशंस. पहले मैं आपको ये लाइन पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है? फिर मैं इसकी हेल्पिंग वर्ड्स बोर्ड पे लिख के पैराफ्रेजिंग करूंगी, ठीक है? तो लाइन है, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप. इट्स अ स्वीट noise to hear these green leaves drinking water. Right? So this stanza, these lines have been taken from the poem The Rain. ठीक है? And The Rain was written by William Henry Davies. This again speaks about the beauty of the nature. आपने बहुत सारी poems जो हैं वो nature based पढ़ी हैं बचपन से लेके आज तक. क्यों? क्योंकि रब्बुल आलमीन ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है और ये सिर्फ आपकी नजर है जो इस दुनिया की खूबसूरती को देख सकें और समझ सकें. लेट्स मूव बैक टू द लेक्चर. लेट्स मूव टू द ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाइंस. ऑलराइट. अच्छा, अब आपने जिस वक्त पैराफ्रेजिंग करनी है तो आपने पैराफ्रेजिंग में सबसे पहले तो आपने पोएम का नाम लिखना है. आप ये लिखेंगे these lines और this stanza. It's up to you. ठीक है? These lines और this stanza. ठीक है? ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या लिखते हैं. ठीक है? अब these lines लिखेंगी तो have been लिखेंगी और this stanza लिखेंगे तो लिखेंगे has been. ठीक है? Subject and verb agreement. Make sure that it's correct. Make sure you're not making any mistake. Make sure your subject and verb agreement is in contrast, in compliance with each other, right? The Rain. This stanza has been taken from the poem The Rain, written by William Henry Davies. In these lines, the poet is describing the sound of the raindrops on the leaves. As the raindrops fall on the leaves, the dropping sound seemed to hear or is reciprocal or equivalent to that of the leaf drinking water. So the poet says that when he looks at the rainwater being dropped on the leaves, it seems as leaf is happily drinking water. He says that the leaves on the top of the tree are the rich ones because they are exposed completely and fully to the rain. Right? The leaves on the top to him were the rich ones because they are exposed or they enjoy the rain completely and fully. And the leaves that are beneath, ठीक है? They are the poor ones. Because the leaves on the top, the rich ones, they take all the rainwater, they drink all the rainwater, and when they are completely drenched, when their thirst is completely quenched, then they leave water drop by drop for the leaves at the down level, at the base of the tree to drink. ठीक है? It's a sweet noise to hear
these green leaves drinking near. So he is saying that the dropping of the rainwater on the leaves, it's a very sweet sound. The sound is sweet to his ear, and he says that it was sweet hearing that sound, and to him, the green leaves were actually welcoming the rainwater, and they seemed to be drinking it with content. They seemed to be drinking it happily. ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसकी ट्रांसलेशन, दैट इज इसकी पैराफ्रेजिंग. ठीक है, और मैंने इसकी सारी पैराफ्रेजिंग बहुत स्लोली आपको करके दिखाई है. आई होप कि आपने मेरे साथ साथ उसको अपनी कॉपी पे लिख लिया होगा. ठीक है, या इस स्टैंजा के साथ साथ लिख लिया होगा. अगर आपने जब भी पोएम करनी है तो आपने ये करना है कि आपने एक पेंसिल साथ रखनी है, और जब भी आपकी टीचर एक्सप्लेनेशन दे रही हो तो आपने उस स्टैंजा के साथ साथ एक्सप्लेनेशन लिखनी है. वो यूं होता है कि जब आपकी हेयर और हैंड कोऑर्डिनेशन हो जाती है तो योर माइंड वर्क्स बेटर. आपकी हेयरिंग और राइटिंग कोऑर्डिनेशन के साथ आपकी मेमोरी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और यूं आपको सब चीज़ याद हो जाती है. तो आई हैव बीन स्पीकिंग वेरी स्लोली एंड आई हैव बीन पैराफ्रेजिंग दिस वेरी स्लोली इन ऑर्डर टू help you or assist you or make you write it. I hope this is done. This was exercise F of review 2. Let's move on to exercise G. G. एक्सरसाइज जी क्या कह रही है? एक्सरसाइज जी ये कह रही है कि आपने पीस पोएम जो है उसकी समरी लिखनी है. ठीक है, अगर आपको मेरा पीस पोएम का लेक्चर याद होगा तो आपको ये याद होगा कि मैंने पहले ही लेक्चर में ट्रांसलेशन के साथ उसकी समरी या पैराफ्रेजिंग की थी. फिर भी मैं आपको थोड़ी सी उसकी हेल्पिंग वर्ड्स और थोड़ी सी उसकी आइडियाज दे देती हूँ. यू हैव टू गो बैक एंड यू हैव टू look at the lecture of the piece, ठीक है, the first one, and then you'll find the summary and the paraphrasing in that specific lecture, right? So the summary will start by again the introduction of the author and the introduction of the poem. This poem, the piece, is written by Dr. Sylvia Hartman. She has described the nature of the wind in this poem, and she says that the wind is ferocious and is fierce and is fiery when it's in anger, and it is the source of destruction that destructs all the man-made things, buildings, houses, trees. The wind uproots all the trees. The wind basically destroys everything up, right? But that is not the true nature of the wind. The true nature of the wind is calm and serene. The wind is calm and serene most of the time. It's only when the wind gets angry that it becomes the source of destruction. And so she has compared life with wind. The problems in our lives are just like winds. They come seldom. But then there is eternal peace. There is forever peace after those problems. So if you want peace in your life, you have to pass those problems. You have to undergo those problems with a brave heart. If you will face all the consequences, if you will face all the problems, then only you will be able to bear the hardships and enjoy the relaxation or the peace that comes afterwards. ठीक है, ये हो गई इसकी समरी. उसके बाद आपके रिव्यू 2 का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, और वो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप. आपका पेपर ए जो है इंग्लिश का वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, आपको पता है. उसमें 4 कॉलम्स बने हुए होते हैं, ए बी सी डी, राइट? और आपको बबल शीट एक मिलती है. उस बबल शीट पे आपने ए बी सी डी को कलर करना होता है. जैसे ये ए बी सी डी, अगर आंसर बी करेक्ट है तो आपने बी को कलर करना है, अगर डी करेक्ट है तो डी को करेक्ट करना है. अब जो सबसे ज़्यादा इसमें स्किल चाहिए होता है वो ये स्किल चाहिए होता है कि आपने अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर आपने बबल शीट पे कलर नहीं करना.
कोई भी कॉलम, इसलिए कि अगर आपने इनकरेक्ट कलर कर दिया और उसके बाद आपको याद आया या आपने इधर उधर से पूछ के आंसर पता कर लिया और उसको काट के दूसरा कर लिया, तो बेटा बबल शीट जाती है, कंप्यूटर स्कैन होती है, और जब वो स्कैन होती है तो उसमें से ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, ठीक है, उनका आपको 0 मिलता है इवन इफ यू हैव रिटन राइट। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव पेपर को अपने ऑब्जेक्टिव पेपर पे सॉल्व करें और फिर उसके बाद बबल शीट पे उसको मार्क करें। एक ये स्किल लाजमी अपने दिमाग से गिरह से बांध लें, ठीक है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आपकी अपनी वोकैबुलरी और आपकी अपनी लर्निंग आती है, ठीक है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मैं आपको नहीं दे सकती कि आप हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। यहाँ पर आपका अपना स्किल, वोकैबुलरी और हार्ड वर्क आता है। सबसे पहले उन्होंने कहा है ROORING, RORING, RAO या ROARING। हमें सबको मालूम है कि रोर होता है ROAING, सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, रोरिंग की। नेक्स्ट इज स्पिनिंग, स्पैनिंग, स्पिनिंग एंड स्पाइनिंग। हमें पता है स्पिनिंग में डबल N आता है, इतनी इंग्लिश हमारी करेक्ट है, हमको इतनी इंग्लिश आती है, सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। थर्ड है वेपर, विस्पर, विस्पर एंड विस्पर एंड विस्पर, ठीक है, यू नो इट्स विस्पर। सरगोशी, ठीक है। अब ये आपने देखा कि हमने पहले उसको एनालाइज किया, हमने उसको सोचा, हमने उसकी स्पेलिंग्स को एक दफा गौर से देखा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव शीट पे फिल किया और उसके बाद फिर हमने बबल शीट फिल की। डायरेक्ट बबल शीट रख के डायरेक्ट फिलिंग की कोशिश मत करना, अपने आप को डिसिप्लिन करो, स्टॉप वॉच लगाओ, स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंगली काम करो ताकि टाइम पर अपना काम कर सको, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे जल्दी जल्दी काम करने की स्टॉप वॉच के साथ, लेकिन करेक्ट काम करने की, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। करेक्ट ऑप्शन इन द बबल शीट, ठीक है, यू हैव टू सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द बबल शीट। वो आपको इस तरह से कॉलम्स देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है और ये डी होता है, ये आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। और आपके यहाँ पर इनकी ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, और आपने इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली बबल शीट पे कलर करना होता है। Again, I am repeating the same word to reinforce in order to make you realize how important it is to discipline yourself, to mark the time and to do the work within the limited time, ठीक है। पहले आप शीट पे सॉल्व करो, फिर बबल शीट पे। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, but all of that is not its core. core कहाँ से लिया है ये सेंटेंस? पीस से, ठीक है। वो विंड की बात हो रही है कि डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशमेंट इज नॉट द रियल कोर ऑफ द विंड। तो ये क्या है? टेम्पररी, नो, हाई, नो, स्ट्रॉन्ग, नो, सेंटर। सो वी आर लेफ्ट विथ सेंटर। तो all of that destruction and demolishment and breaking up is not the real center of the wind, ठीक है। वो ना विंड का स्ट्रॉन्ग है ना विंड का टेम्पररी है, वो विंड का सेंटर है। इसी तरह सेकेंड इज द वर्ड स्मैशिंग। स्मैशिंग का मतलब फ्लाइंग होगा। हमें पता है व्हेन वी स्मैश थिंग्स अप, ये फ्लाई नहीं है। मेक स्मैशिंग इज ब्रेकिंग, ठीक है। मूविंग, नो, स्मैशिंग इज ब्रेकिंग एंड हिटिंग। So this is what the word smashing means, ठीक है। हमने यहाँ पे हाईलाइट किया और आखिर में हम बबल शीट पे हाईलाइट करेंगे, साथ साथ हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। Is this your book? अब आपने इसमें प्रोनाउन फाइंड आउट करना है
कि what sort of pronoun this is. ठीक है, reflective, yourself, myself, himself, reflective नहीं है. demonstrative, demonstrate कर रहा है, yes. ठीक है, reflexive, आपका अपना नहीं है, I saw myself, he saw himself, नहीं. reflexive भी नहीं है और पर्सनल भी नहीं है. ठीक है, दिस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है इस बुक को, सो इट्स अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, these are total 10 objectives, done 3 over here. Let's move on to the fourth one. Again, pronoun आपने find out करना है इस sentence में. Give me that book. ठीक है, कौन सी book? वो वाली, that. So that is a demonstrative pronoun. ठीक है, क्योंकि वो demonstrate कर रहा है कौन सी बुक मांगी जा रही है. It's a demonstrative pronoun. The roaring wind is an example of visual imagery, auditory imagery, simile और alliteration. As और like है, simile no. ठीक है, repetition of the consonant sign sound है, नहीं. alliteration cancel. अब we are left with visual और auditory. roar आप सुनते हो, roar आप देखते नहीं हो, तो ये visual नहीं होगी, ये auditory होगी. ठीक है, एनालाइज करके हम आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हैं. 6. Who is standing behind the door? Relative है, reflexive है, demonstrate कर रहा है किसी चीज को, नो. interrogative है, पूछा जा रहा है कि दरवाजे के पीछे कौन है. ठीक है, कौन खड़ा हुआ है दरवाजे के पीछे, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसके इंटेरोगेटिव को हाईलाइट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ फॉर हिज मिसकॉन्डक्ट. ठीक है, इनडेफिनिट नहीं है, डेफिनेट है, देयर इज अ सब्जेक्ट. ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहा, किसी चीज के बारे में नहीं बता रहा, रिफ्लेक्सिव है, यू आर रिफ्लेक्सिंग ऑन योर ओन सेल्फ. ठीक है, रिफ्लेक्सिव है और रिलेटिव भी नहीं है, तो इट्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वी वॉच्ड एन डैश फिल्म. ठीक है, अब यहां से शुरू करो. अम्यूजर वर्ड यूज किया है कभी? नहीं किया, ये कट ऑफ हो गया. अम्यूज, वी वॉच्ड एन अम्यूज film. I think this sounds a very shaky, incorrect. We watched an amused film. मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे करेक्ट साउंड कर रहा है, तो करेक्ट क्या साउंड कर रहा है? We watched an amusing film. ठीक है, सारे हमने ऑप्शंस को डिस्कस करके क्रॉस आउट करके we have found the correct one. Her laughter is annoying. किस किस को laughter is annoying लगते हैं दूसरों के? हैं annoying क्या है? annoying auxiliary verb है? नहीं, auxiliary verb तो is है. ठीक है, past participle है, हो ही नहीं सकता, यहाँ present tense है. present participle है, yes, यहाँ present tense है और verb के साथ ing लगा हुआ है, ये present participle है. gerund है? नहीं. annoying is something that you are feeling. ठीक है, तो ये present participle है. We move on to the last option. Last option है I request him to open the door. ठीक है, to open the door कौन सा phrase है? prepositional phrase? no. ठीक है, adverb phrase? नो. कोई मैनर बता रहे हैं इसमें कोई एडवर्ब है? नहीं. जेरेंट फ्रेज?
Open the door. I request him to open the door. He was being requested to do something. So it's not a gerund. Gerund is a verb that takes place of a noun. ये भी नहीं है, ये infinitive phrase है. Simple infinite phrase. ठीक है, इसमें पोजीशन नहीं बताई जा रही, तो ये preposition नहीं है. ठीक है, इसमें कोई adverb नहीं बताया जा रहा. ठीक है, किसी भी वर्ब के साथ उसका एक्शन किस तरह से, कैसे, कहाँ, कब, क्या फ्रीक्वेंसी, कुछ नहीं बताया जा रहा. तो ये सिंपल इन्फिनिटिव फ्रेज है. Have you seen all the answers? We have discussed and we have done all the answers of the objective type paper. मैंने आपको एक स्किल बताया है, मैंने आपसे कहा है कि डायरेक्ट बबल शीट नहीं फिल करनी, पहले ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करें और फिर उसको बबल शीट को सामने रख के उसको कलर करें. अगर आपने 2 या 1 क्रॉस या कुछ भी कर दिया तो बेटा आपका वो स्कैनिंग में कैंसिल हो जाएगा और उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे. ठीक है, क्विक रीकैप ऑफ द लेसन. We did the paraphrasing of the given stanza, then we did the summary of the poem piece. After that, we did the objective type, from which we did match the correct spelling, and then we did the MCQs to find the correct answers. MCQs क्या होते हैं? Multiple choice questions. आपके पास multiple choice questions हैं जो आपने बबल शीट पे जिनके आंसर्स कलर करने हैं. अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपना स्केड्यूल सेटअप कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, सेफ रहिएगा. until we meet again in the next lecture. By that time, Allah Hafiz from Faiza Nadeem.